firstly, congratulations to all of you. It looks amazing, and as you can see, people cannot stop clapping. The one thing that all of us can very clearly see is that it is shot in the real locations of Mumbai. So how was that different from shooting it in a studio? How was that experience? ऐसा कभी होता था कि shoot चल रही है और कोई ऐसे आके पीछे कैमरा में ऐसे करके चला जाता था? How is it different? How was the experience? Okay, the Hankar per se, when it was when it was narrated to us by Yogi, and that was a precondition that we will not be shooting it in any of the studios, and we will not be shooting it on any of the sets, which are so-called film sets, or which we usually find on the television, and also looking into the matter that it should not look like one of those typical crime series. बात ये थी कि it's a real life drama. हर इंसान के जिंदगी में कोई ना कोई ड्रामा चलता रहता है, and everybody is part of this drama. So हर बार ये होता है कि एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक सिचुएशन खड़ी होती है और बाद में उसके अंदर लोग आते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से उल्टा किया है कि लोग पहले हैं और बाद में ड्रामा क्रिएट हो रहा है. तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक एक कैरेक्टर के साथ में, एक एक किरदार के साथ में, when you grow with that character, you will come to know what the real drama is, and that's why it has gone very slowly and आहिस्ता से जा रहा है हर एक की जिंदगी में, और जाकर के वो एक बड़े ड्रामा पे, इसलिए it was necessary to go into the real locations and shoot with them. So, was there ever an incident where people walked up to you or just popped into the camera? Because real location shoot is very different from shooting it in a studio. That was. Was there any experience that you recall? That was a regular part. So every time, it was not one. It was every time that we used to shoot. ए भाई, उसको हटाना है, वो नहीं आपका नहीं है भाई, आपका नहीं, वो shooting चल रही है. So once there was an actually we had to ultimately let go that scene, जिसमें हमें एक जो हमने अभी जो the mobile shop, it's an actual mobile shop. Okay. It's not a set, it's an actual mobile shop. तो वो वहाँ पे when Ram was there and जब वो आया तो somebody came. While the scene was on, 10 रुपए का रिचार्ज देना. You shouldn't be like हंगामा प्लेस जाके लेना. And if you notice, वो बेचारे का रिचार्ज अगर लिया भी नहीं होगा क्योंकि वो डोकोमो का उसमें पीछे पोस्टर, वो कंपनी बंद हो गई है. Now that is something that I didn't notice. तो यहाँ पर जैसे कि very clearly हम देख रहे हैं कि 5 अलग-अलग लोगों के बारे में है, and we have all the 5 people over here. तो ऐसा कभी हुआ कि आपको अपने कैरेक्टर से ज़्यादा किसी और के कैरेक्टर में इंटरेस्ट आया and you were more wanting to know about them? एक मिनट. सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो 5 कैरेक्टर जो आपने देखे, वो जो पहला जो सीन था जिसके अंदर सबकी थैलियां खुल रही हैं, 5, that was the first time they met each other. Oh, quite a landmark shot. And that particular scene was shot at the wrap, at the last. सबसे आखिर में वो सीन शूट किया गया. अच्छा, so in the series. In the series, that scene was shot at the end of the shoot. That was the wrap. And that's how we begin. And that was the time जब ये 5 कैरेक्टर एक दूसरे से मिले थे. पहली बार. उसके पहले हाँ पता है ये भी काम कर रहा है वो भी, लेकिन मिले कभी नहीं थे. Whoa. आज हम दोनों तो आज मिले. और ये तो कई लोगों से नहीं I'm glad. I'm glad finally. तो ऐसा कभी हुआ कि आप you guys were envious कि यार इसका जो मतलब पूरा story line है and the way it's flowing, did you guys ever appreciate? Every time, yeah. Which one? You have to pick one. So my question is that you have to pick the character you appreciated the most. The fact is, I always feel the other characters are better than mine. And he got suits stitched. और मैं घर से कपड़े ले आया. He's the coolest, the deadliest. अभी 2 episode में we have barely seen him. अभी से उनका कहर. The only positive thing is all the women are going to go for him. So I'll have no stress with my wife. But that's not much of a positive thing. But having said that, no, to be very honest, when one looks at it, if you
you are an actor who's greedy, like I am, you always look at other people and say, I want that part. Oh shit, that one is better than mine. And after the screening, I felt it even more. But it's a very natural thing. But at the same time, you want to be a part of a project that is exceedingly well conceived, that is made with a lot of passion and obsession, and where people are ready to go that extra bit. You know, when you talk of shooting not in a studio, it also involves the dedication of the actor. Where the actor is willing to go through that extra mile, that extra discomfort, knowing that वहाँ पे vanity नहीं होगी. Yeah, we saw him dancing on the bike. Yeah, so yeah, he's a good dancer anyway. So basically the idea is that when you have people who are really involved with the project, and you have people believing in the project, and you want to be a part of such a project, then in spite of being envious, you're glad that you're working with such a brilliant set of team, including the actors, the technicians. You made us look so good. Our DOP over there, you know, and of course, our non-action and non-cut director, जिस जिंदगी में कभी action और cut नहीं बोलता. I mean, that was completely a new experience in my life. और गूंगे एक्टर को हर बार माइक पे ना देते और जिस दिन मेरा रोने का सीन था तब नहीं दिया. So we have such innovations happening, but you're right where that is concerned. और ये आप लोगों की मतलब इतनी रियलिस्टिक शूट हो रही थी कि जेम्स के लिए कभी माचिस कहीं नहीं मिलती थी. So actually, I was coming to that कि जब इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ एक चीज के लिए शूट कर रहे हैं, क्या पागलपन होता था सेट्स पर. जो हमारा मुंबई है वही तो हमारा सेट था. क्या पागलपन होता था वहाँ पर. ट्रैवल हम लोग कभी वर्ली में शूट करते थे, फिर सीधे वहाँ से धारावी जा रहे हैं. And I'm sure everybody relates to you right now. yeah, exactly. That तब मेट्रो नहीं बन रही थी तो. And the best part was कि when you asked me about कि कोई कैमरे के सामने आ जाता था, कैमरे के सामने I don't know who used to pop up, but people popped up to take the camera away. So that used to happen all the time. That area का दादा, पुलिस वाला, anyone would just come up and say कि क्या चल रहा है. And these guys handled it so smoothly. It was amazing. I think a story like that wouldn't have been possible if it were not in Mumbai, and the whole underbelly, the dark side of that. So thank you so much once again. Congratulations to all of you. I think we're gonna just do a photo op with all the entire cast, Neeraj, everybody over here. So it's up to you guys now. Yeah. तो हंकार जो है एक 5 साधारण लोगों की ज़िंदगी के बारे में है, जिनकी लाइव्स एक कैरेक्टर से मतलब इन्फ्लुएंस होती है उस चीज़ को. सो इसे हम जैसे एक हाई ऑक्टेन ड्रामा बताते हैं. ये 5 कैरेक्टर एक दूसरे को जानते नहीं हैं. ये पूरी सेटिंग इसकी मुंबई में हुई है, ज़्यादातर उसकी अंडरबेली में हुई है. रवि और उज्ज्वल यहाँ पे इन लोगों ने इसका क्रिएशन किया है. और ये हमारी सेकंड ओरिजिनल सीरीज़ है जो कि हंगामा प्ले पे हम माउंट कर रहे हैं. 10 एपिसोड हैं, सारे के सारे आज से शुरू देख सकते हैं लोग इस पर. जी देखिए, इस वक्त अगर आप देखें कि या तो लोगों को टीवी के माध्यम से या फिर सिनेमा के माध्यम से ज़्यादातर कहानियाँ देखने को मिलती हैं. हमें ये लग रहा है कि पर्टिकुलरली टीवी के माध्यम से जो जीसी चैनल्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग है दैट इज़ मोर एंड मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स विमेन. एंड
there is a huge opportunity. इस वक्त almost 70% लोग जो digital पे streaming कर रहे हैं, they are male audiences. So we are looking for stories which are gritty, which are, you know, narrative of reflecting what the true reality of life is. And in that sense, we found Hankar as a drama which would appeal to a younger generation. And that's why we chose to produce it. देखिए, आई थिंक इट्स नॉट इनफ राइट नाउ. इस वक्त अगर आपको लग रहा है 8, 10, 15, 20 जो प्लेटफॉर्म्स है बहुत हैं, ये हमेशा याद रखिएगा दैट देयर आर 892 टीवी चैनल्स एज वेल. तो देखिए, कहानियाँ बनाने के लिए दिस इज समथिंग विच as long as there is an audience. For us, we've got 55 million consumers. Even if 1 million people take an interest to it, it's reaching out to that. So as long as we're making good quality content, the ability to reach out and curate those audiences is there. And that's our job. That's what we will basically be doing out there. See, I think the pros of a digital platform is that it's anytime, anywhere. It's like I say, prime time is my time. You know, I'm not restricted by going to a particular place or watching a program at a particular time. मैं कभी भी उस चीज़ को जब चाहूँ वो कर सकता हूँ. The cons are that you still need connectivity, you still need a digital device to doing it. But वो भी change हो रहा है. India is now is the market leader as far as the lowest price data in the world. So मैं तो बोलता हूँ जैसे ब्रॉडबैंड इज गोइंग टू बिकम लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, एंड वही हो रहा है इस वक्त. See, there is a certain kind of mystery around the character. मैंने अभी तक बाकी जो कैरेक्टर किए हैं, जैसे मैंने पद्मावत में जो आई प्लेड गोरा सिंह, तो दैट कैरेक्टर वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस. गोरा सिंह वाज अ बड़ा आदर्शवादी, सच्चा, एकदम अप फ्रंट कैरेक्टर था. जी जो है वो उतना ही मिस्टीरियस है. जी अपनी किसी भी चीज़ को रिवील नहीं करता. आगे आप सीरीज़ में देखेंगे, आपको और आगे एपिसोड्स में पता चलेगा कि ही डजंट शो एनी इमोशन, एनी एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, ताकि किसी को कुछ समझ में ना आए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. सो फॉर मी एज एन एक्टर इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम एक्टर जो हैं वो एक्सप्रेशन से खेलते हैं. वी आर मोर एक्सप्रेसिव. हम अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये जो जी है वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करता. सो देयर इज़ अ मिस्ट्री अराउंड हिम एंड विच वर्क वेरी वेल. बहुत मज़ा आया काम करके योगी के साथ. तो इट वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस. सी, रियल लोकेशन का अपना एक चार्म है शूट करने का. जब आप एक स्टूडियो में शूट करते हैं तो अब जैसे अगर हम ये बात स्टूडियो में शूट कर रहे होते तो ये लोग पीछे बात नहीं कर रहे होते. तो देयर इज़ अ सर्टन एनवायरनमेंट गिवन टू यू. लेकिन जब आप रियल लोकेशन में शूट करते हैं तो आपके लिए चैलेंज उतना ही बढ़ जाता है. तब मुझे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है आवाज़ से, अपना काम भी करना है. एंड मोस्ट ऑफ द सीन्स वी शॉट विदाउट एनी परमिशंस, हिडन कैमरास. तो अपना काम करके चुपचाप कैसे निकल जाना है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. गुरिल्ला शूटिंग भी कहते हैं शायद इसे. तो वो एज एन एक्टर आपको एक नया कॉन्फिडेंस देती है कि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर सकता हूँ, कैसे भी लोग आए. जैसे उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया कि एक आदमी सच में आ गया कि भाई मेरा 10 रुपये का रिचार्ज कर देना उस मोबाइल शॉप वाले सीन में. तो इट्स अ चैलेंज. यू डोंट हैव टू लूज योर कैरेक्टर. आपको उसी में रहना और काम करना है. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है. आप बोलिए. आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. आप दोबारा बताइए. सी, सबसे पहले तो मैं इस मीडियम की बात करूंगा, डिजिटल मीडियम. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम.
जैसे नीरज सर ने बताया, उसका रीच इतना ज़्यादा है, हर एक आदमी, इवन बिल्डिंग का वॉचमैन, ऑटो वाला, सबके पास फ़ोन है, उसका रीच बहुत सॉलिड है। रीच अगर इतना ज़्यादा है तो उतना ही आपके पास एक स्कोप है उन तक पहुंच के उनको ये मैसेज देने का कि भाई दिस इज़ नॉट गुड। अब ये जो एज द नेम सजेस्ट हंकार इज़ अबाउट ईगो, आपको ईगो ही लेके चल रही है, तो उसमें आपको देखो दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है, देन यू हैव टू डिसाइड। जैसे मैं एक सीरीज़ में काम करता हूँ, इट्स कॉल्ड क्राइम पेट्रोल। उसमें अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अरे आप तो लोगों को तरीके बताते हैं क्राइम करने के, लेकिन मैं उसमें ये कहता हूँ कि हम एंड में ये भी बताते हैं कि आप कोई भी तरीका अपनाओ लेकिन एंड में पकड़े जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है करके। तो दिस इज़ हाउ यू कम्युनिकेट, आपको वो दिखाना ही पड़ेगा ये बताने के लिए कि भाई ये सही है कि गलत है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और जैसा नीरज सर ने बोला, रीच बहुत ज़्यादा है, तो डिजिटल मीडियम इज़ अ स्ट्रॉन्ग मीडियम लोगों तक पहुँचने के लिए। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी योगी से पूछना चाहिए, ये एक बात कह रहे थे कि इन्हें मल्टीपल कैरेक्टर्स की कहानी बड़ी पसंद आती है। अब वो अगर आप सोचें डिजिटल ऑडियंसेस में, आजकल हम लोग जो हैं फ़ोन पे मैसेज करते हैं, टीवी देख रहे हैं और किसी और से बात भी कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू कॉल मल्टीटास्किंग। यू वांट टू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इंस्पायर्ड यू ऑन समथिंग लाइक दिस? Yeah, I mean, Come this side. yeah, as a writer, co-director, I want to say stories, मुझे ऐसी कहानियाँ कहनी है जो कहानी रियल हो, रियल किरदार हो, उसमें ऐसे कैरेक्टर हों जो हम रिलेट कर पाएँ और कभी रिलेट ना भी कर पाएँ। तो आप देखेंगे कहानी, तो कहानी में हर कैरेक्टर के एक या दो प्रोफेशन हैं, मतलब, और हर एक की प्रॉब्लम है, वो उसके चॉइसेस हैं, वो प्रोफेशन रिलेटेड भी हैं और पर्सनल रिलेटेड भी हैं। तो आई मीन, और 5 लोगों की कहानी भी नहीं है, जब देखा तो ये 7 लोगों की कहानी है। 5 प्रोटैगनिस्ट हैं, हमारे उज्जवल जी हैं जो जी प्ले कर रहे हैं, और मामू जान हैं शाहनवाज प्ले कर रहे हैं। तो उन सबकी कहानी है, कोई कैरेक्टर के लिए आप शेयर कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर के लिए आप शेयर नहीं कर रहे हैं, बट विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी थिंक कि ये सही है गलत है, आप एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी आप तभी जज करना चालू करेंगे कि क्या है, क्या नहीं। हर एक राइटर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑल आउट ना जाएं, मतलब और ये मीडियम राइटर का मीडियम है, ये मीडियम राइटिंग स्टेज पे होता है। जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें मालूम है कि ये डिजिटल है, तो क्यों ना हम ऑल आउट जाएं, बट हम वैसे नहीं सोचते हैं। अभी हमारी टीम का ये सोचना है कि जितना हो उतना ही यूज़ करो, फॉर द सेक ऑफ इट न्यूडिटी ना हो, फॉर द सेक ऑफ इट वी नॉट यूजिंग गालीज फॉर द सेक ऑफ यूजिंग दैम। तो जो यूज़ करता है उसका, आई मीन, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट एज सच, बट ज़रूरी है कि यू क्रिएट कंटेंट दैट पीपल रिलेट टू फ्रॉम अ स्टोरी पर्सपेक्टिव, नॉट बिकॉज इट हैज़ न्यूडिटी और बिकॉज इट हैज़ प्रोफानिटी और लैंग्वेज। हमने 10 एपिसोड किए हैं, 10 एपिसोड लाइव हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं हंगामा प्ले पे। Of course, so we have developed backstories even while we were writing the characters. A lot of it we haven't briefed the people on purpose, but we are developing it, and the season we are writing for more seasons. But as you go further, it will be a much larger story. अभी ये जो पहला सीजन है उसको हम अपने तरीके में एक्ट 1 ही कहते हैं, अभी तक एक्ट 2 और एक्ट 3 चालू भी नहीं हुआ है। I think USP is the multi-character story. We feel that वो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, और रियल लोकेशन एक्सप्लोर नहीं किया है, वो रॉनेस एक्सप्लोर नहीं किया है, और जिस तरीके से डायलॉग्स हैं बहुत रियल हैं, हमने ओवर ड्रामेटाइज नहीं किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने एक बात को बहुत रिपीट नहीं किया है। अगर आपने वो सुना नहीं तो आप मिस कर देंगे, तो यू हैव टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड कि कहानी कहाँ जा रही है। हमने उस बार बार प्लॉट को रिपीट नहीं किया है, तो वो तो इंटेलिजेंट ऑडियंस ऐसे लिखा है कि लोग को ध्यान से देख के इंटेलिजेंट तरीके से समझें। You will be asking questions. Which camera? That camera? Okay.
सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मी अट्रैक्टेड टू द स्टोरी वाज द इंटेग्रिटी ऑफ द स्टोरी, कि जिस तरीके से वो कहानी लिखी गई थी और जितनी सफाई से लिखी गई थी और जितने किरदार एकदम सोच समझ के लिखे गए थे, तो आई जस्ट थॉट दैट इट इज़ एन एक्सीडिंगली इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेल स्क्रिप्टेड स्टोरी। तो जब आपको एक ऐसा किरदार मिलता है जहाँ आपका किरदार ही ना अच्छा हो लेकिन सब किरदार अच्छे हों और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये लोग काफ़ी एफर्ट पुट कर रहे हैं, पैशन पुट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, दैट इज़ व्हेन यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। So, as I said, वो योगी का आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, उसने डेवलप किया. ही पार्टनर्ड विथ रवि एंड रवि के साथ जब पार्टनरशिप करके फिर दे केम टू मी सेइंग दैट ये हमारा ये सोच है कि हमको इस टाइप की वेब सीरीज़ बनानी है. एंड सिंस पॉकेट फिल्म्स इज़ ऑलरेडी लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर शॉर्ट फिल्म्स, so they reached out to us saying that will you help us with distribution. And जैसे मैंने पहला प्रोमो देखा और दोनों का पैशन देखा, I said, you know, ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है that एक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बजाय let me come on board as a co-producer because I think there is much more to the project. And we got involved then from that day onwards कि पूरा प्रोजेक्ट को सही तरीके से पैकेज करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ा लॉन्च देने की ज़रूरत है. ये एक आइडिया है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट विद द आइडिया दैट यू नो वी विल पुट इट आउट देयर ऑन आवर चैनल ऑन पॉकेट फिल्म्स बिकॉज दिस कैन बी पुट अप वेल. बट देन व्हेन वी स्पोक विद हंगामा एंड दे वर आल्सो इक्वली एक्साइटेड, तो हमारा ये इंटेंट हो गया कि चलो इस शो को और बड़ी रीच से इनके सपोर्ट के साथ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं बिकॉज द स्टोरी इज़ सो गुड, द कॉन्सेप्ट इज़ सो गुड and it is a completely concept driven web series. And as he rightly said, ये हर एक कैरेक्टर को सोच के समझ के डेवलप किया है. ऐसा नहीं है कि कोई भी anybody is just there for the sake of being in. And I think most importantly I would say all through the whole process जो passion, commitment and not just from the producers but the actors who are known for their idiosyncrasies, let me be honest. They were all supporting us कि कुछ भी हो जाए, मतलब हम हैं खाली इसको बनाते हैं बस. And you know that is what motivates us to work even harder and more. And you know as they say that if your focus is right, your intent is right, तो फिर लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, and it automatically moves towards success. नहीं, मुझे तो हमेशा लगता है आप कोई भी किरदार करें आपको ऑनेस्टी चाहिए. चाहे आप एक नेगेटिव किरदार करें, आप एक पॉजिटिव किरदार करें, आप एक कॉमिक किरदार करें, आप एक सीरियस किरदार करें. दिस अप्लाइज टू एक्टिंग, it applies to direction, it applies to screenplay and also applies to production. A lot of people think that वो produce करना creative field नहीं है, सिर्फ पैसा है. It's not, because a lot of times your decision on putting in money, जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर शूट करना है और एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो आई एम श्योर सर विल ऑल्सो टेल यू मच बेटर कि हाउ मच विल इट क्रिएटिवली ऐड एंड हाउ डू यू टेक दोज क्रिएटिव कॉल्स. तो वो क्रिएटिविटी प्रोड्यूसर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इंटेग्रिटी तो आपको हर जगह से चाहिए. आप जब भी एक इंटेग्रल प्रोडक्ट देखते हैं जैसे इस तरीके से कि आप देखकर ही आपको पता है कि हर एक बंदे ने ना एकदम शिद्दत के साथ काम किया है, चाहे वो डीओपी हो, चाहे वो आपका एक्टर्स हो, डायरेक्टिंग टीम हो या जो भी हो. That is all because it is the integrity is all throughout. आप एक जगह भी खामी ढूंढेंगे ना वो पूरा वो गिर जाता है. एक ताश के पत्ते के घर की तरह ठक 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 स्विच ऑल दें. हाँ हाँ, रियल लोकेशन पे शूट करने में एक अपना ही मज़ा है क्योंकि आपका कोई कंट्रोल एटमोसफियर नहीं होता. एज एन एक्टर यू वांट टू डिलीवर योर परफॉर्मेंस. यू आर सेइंग लाइक ये सीन मुझे बहुत अच्छा करना है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर सामने से फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी आ जाए और मुझे उसके ऊपर आई हैव टू आल्सो नोटिस एंड रिएक्ट टू इट. सो इट्स ऑलवेज फन. अकॉर्डिंग टू मी इट्स जस्ट अनदर कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस और उसको करने में इक्वली मज़ा आता है. मोस्ट
सब कुछ ऑन लोकेशन किया। सो सोशल कॉज एक अंडरले है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई सोशल मैसेज ऐसा नहीं है। जो मेन आप जो कुछ देख रहे हो, ये एक ऐसा सीरीज़ है जो रियल लाइफ को दर्शाता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग तरह से बता रहे हैं, या जो आज की रियलिटी है और उसे जितने रियल तरीके से कैप्चर किया जा सके ये हमने किया हुआ है। योगिनी फॉर एग्जांपल कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे इसको हमने कामाठीपुरा में शूट किया था। एक ऐसा सीन है जो चल के जा रही है, वो उस सीन में हम लोग गाड़ी में छुप के बैठे थे और कामाठीपुरा में हम लोगों को परमिशन नहीं मिले थे शूट करने के लिए। तो हमने ऐसा किया कि योगिनी को बोला तुम वहाँ से एक पॉइंट तक चल के जाओ, और वहाँ पे किसी दो लोगों के बीच में कुछ बातचीत भी चल रही थी, एक प्रॉस्टिट्यूट थी और एक उसका कस्टमर था। तो उसके ठीक आगे योगिनी चल के जाती है, कुछ देखती है और आगे चल के निकल लेती है। तो वो जो जगह थी वो इस्टेब्लिश किया हमने, और उसके बाद जब हमने जो इसको किसी घर में जो झगड़ा होता है वगैरह वो कहीं और का था, लेकिन वो माहौल और वो जगह जितना रियल हो सके हमने सब एक्चुअल रियल लोकेशंस लिए हुए हैं। और बताइए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, क्योंकि जैसे रविदा ने बताया कि कामाठीपुरा जैसे एरिया में जाके शूट करना ये कोई आसान बात नहीं है। और वहाँ पे जो नज़रों का सामना मैं कर रही थी, तो वो इतना रियल एक्सपीरियंस है कि उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन देना ही नहीं पड़ता। दूसरा मैं कहूँगी कि जो डेवलपिंग के लिए चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, हमने उनके साथ भी काम किया, उनके स्कूल में जाके, और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था कि वो इतने अटैच हो गए थे कि ये सब शूट हो रहा है, उनके लिए वो कुछ नहीं था, उनके लिए बस उनको वो इतने हक कर रहे थे। मैं उनको डांस सिखा रही हूँ, ऐसा एक सीन था। तो मतलब ये इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है। एक तो मतलब मेरे घर में ही हुआ है शूट, तो वो भी बहुत बढ़िया। तो मेरे सारे नेबर्स वगैरह आके देख रहे हैं। एक सीन है जहाँ योगिनी के और रमेश नायर के बीच में झगड़ा होता है। हाँ। और वो दारू पी के इसे घर के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इनके 3 टेक्स थे, तीनों टेक्स में योगिनी इतनी इन्वॉल्व हो गई थी, और जिस तरह से उसने जो, और हमारे यहाँ जैसे संजय ने कहा हम लोग एक्शन वगैरह नहीं बोलते थे, तो किसी को पता नहीं अंदर शूटिंग चल रही है। उसके नेबर्स को लग रहा है कि अंदर झगड़ा चल रहा है, कोई रियल झगड़ा, तो दौड़े दौड़े भागे अंदर आए, और 3 अलग नेबर्स आए ये देखने की क्या हो रहा है। देखो, अगर रियलिज्म चाहिए तो, और इनफैक्ट खाली उस जगह पे शूट करना ही नहीं, हम लोगों ने बहुत जगहों पे हिडन कैमराज यूज़ किए एज अ टेक्निक। क्योंकि अगर मैं मेन रोड पे अगर मैं कैमरा लेके खड़ा हो जाऊं तो पकड़ में आ जाऊंगा, दिख भी जाऊंगा। कई जगहों पे एक कैमरा मैं ऑपरेट करता था, हम लोगों का डीओपी कौशल एक कैमरा ऑपरेट करता था, 2 लोग बैठे हैं, क्योंकि सीन भी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता था कि दोबारा आप शूट भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। और जो इमोशंस एक अच्छे एक्टर के निकल आते हैं, अगर आप उसे पहले ही ज़रिए में अगर आप कैप्चर नहीं करो तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और एज एन एक्टर मैंने काम करते वक्त मैंने एक काजल या एक पाउडर भी नहीं लगाया है। एक बार मुझे याद है, मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के आई थी, लाइट सा एकदम दिख भी नहीं रहा था, फिर भी योगी ने मुझे कहा कि वो निकाल दे, क्योंकि इतना रियल, ताकि एक तो इन्होंने जो कास्टिंग की है हम सबकी, हम वैसे ही है दिखते हैं जो हमारा रोल है, जैसा हमारा, लेकिन उसमें भी अगर हम कुछ अननेचुरल करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो अभी आपको नेचुरल दिखते वक्त आ रहा है। रियल लोकेशन, रियल लोग, और अभिनय करने का ज़रूरत ही नहीं है, और एक्टिंग वही है जो एक्टिंग ना लगे। ये इनके कई इंसिडेंट्स रियल लाइफ इंसिडेंट से लिए हुए हैं। मेरा एक दोस्त है जो सेक्स ट्रेड के लोगों को रेस्क्यू किया करता था, उसका नाम एंसन थॉमस है। उसकी एक स्टोरी है जहाँ उसने एक माइनर को रेस्क्यू किया था, और एक बच्ची को ड्रम में दबा के रखा हुआ था। हमने उस केस को निकाल के उसको रेफरेंस रख के कई जगहों पे, जहाँ योगिनी एक जगह और एक सीन है जहाँ वो ढूंढने जाती है कुछ बच्चों को, वहाँ एक्चुअली ड्रम्स में छुपाए हुए थे बच्चे, ये दिखाया गया है। सो जितना कुछ, इवन ड्रग सीन का म्याओ म्याओ का रैकेट तभी निकला था। तो बहुत सारे जो रियल इंसिडेंट्स हो रहे हैं बॉम्बे में या इंडिया में, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रख के लिखा हुआ है, और उसको इसीलिए शूट वैसे किया।
सो जब आप अगर हंकार के सारे एपिसोड्स देखो, टुकड़ों में आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, और आज आप अगर न्यूज़पेपर खोल के अपने न्यूज़ पढ़ोगे तो उसके साथ वो रेलेवेंस नज़र आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो डार्क साइड है हमारे एरिया का, जो हमारे आसपास घटती हुई घटनाएं हैं, उनको ही दर्शाया गया है एक साथ, एक मिलके। और हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन फिर भी एज एन ऑडियंस जब मैं वो देखती हूँ तब हाँ, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, ये हमारे आजू बाजू घट रहा है और अब हमारी भूमिका क्या है, अब हम इसके आगे क्या अपना कदम उठाते हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और जब ऑडियंस ये सोचेगी तब हम सक्सेसफुल है। क्योंकि ये 5 लोग जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, ये नॉर्मल से इंसान हैं, इनको लाइफ ने ऐसे जकड़ के नीचे खींचा हुआ है, अब ये क्या करेंगे। तो आप हंकार जब देखोगे सीज़न 1, इन 5 लोगों के साथ क्या होता है, ये है पूरा। उज्ज्वल जो जी का रोल प्ले कर रहे हैं, ब्रिलियंट एक्टर, मामू जान ब्रिलियंट एक्टर। आपको सच बोलूं तो हमारा 50% काम पूरा इस बात से हो गया था कि कास्ट जो हमारी है वो ऐसे ब्रिलियंट एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। एंड हंकार हैज़ बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वेरी ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया करते हुए। और इन्होंने एज एन डायरेक्टर इन्होंने इतना फ्रीडम दिया हम, और एक्टर को क्या चाहिए, फ्रीडम मिले तो वो खुल के काम करता है। और इन्होंने तो मतलब एज अ डायरेक्टर उन्होंने छोड़ दिया था कि आपको जो फील होता है बस आप फील करो और वो प्रेजेंट करो। और जब इतने खुलापन मिलता है तब दोनों का कोलैबोरेशन काम बहुत बढ़िया होता है, जो आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पहले तो ये शो में पहली बार जब मैं ऑडिशन के लिए गया था मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, तो एंड देन आई केम बैक प्रिपेयर्ड मोर एंड वट एवर यू सॉ। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात अबाउट हंकार मीन्स ईगो, ठीक है। तो थ्रू द जर्नी मैंने एक चीज़ जो सीखी कि ईगो मत करो, या एंड अबाउट द कैरेक्टर वो बोल नहीं सकता, एंड देयर वाज अ लॉट टू से। और मुझे ये बोला गया था कि जो जी का किरदार है वो आपके कैरेक्टर के थ्रू सबसे ज़्यादा दिखता है। एंड ये लोगों ने इतना अच्छे से कन्फाइंड रखा था अपना स्टोरी कि मुझे आज पता चला कि जेम्स की स्टोरी है क्या। तो मंगेश को नहीं पता था कि जेम्स की स्टोरी क्या है, वैसे ही मुझे किसी और किरदार की स्टोरी नहीं पता, बस एक स्टोरी बोर्ड मिला था जहाँ पे पता चला कि कहीं एक बार जाकर ये सारे 5 मिलेंगे। लेकिन पता चला कि जब वो मिले वो लास्ट डे था शूट का। सो इट्स क्रेजी। आई थिंक लोगों को हंकार इसलिए देखना चाहिए कि हम सब में कोई मंगेश, कोई जेम्स, कोई प्रदीप, ये सब कैरेक्टर्स हैं, एंड हम वो जी को ढूंढ रहे हैं। एंड या इट्स अ वेरी मिस्टीरियस शो। जेम्स का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर तो पता चल ही गया होगा देखने के बाद, ड्रग पेडलर का है। वो ट्विस्टेड है, उसको एक्चुअली खुद ही पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जैसा ऐसा मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जनरली होते हैं, राइट। बचपन से ही जो है उसका लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, जो उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। और ऐसा कैरेक्टर आपको मुंबई में बहुत मिलेगा जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। और लेकिन जेम्स की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। सो दैट्स द पार्ट आई लाइक मोस्ट जेम्स के बारे में। तो मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और जिससे प्यार करता है ना, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसका जो पूरा का पूरा जो है, जो नेटवर्क है, जो भी अंडरवर्ल्ड का दिखाया है स्टोरी में, वो इसलिए फंसता जाता है ना कि जो भी अंडरवर्ल्ड का सीन है, जो भी जी है या जो भी है, वो उसके गर्लफ्रेंड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो बेचारा उसी को बचाने के लिए फंसता जाता है। तो ये जो है ना, वो ट्विस्टेड कैरेक्टर का एक जो पार्ट है, जो हर इंसान के लाइफ में जो कमज़ोरी होती है और जो पीछे बैठा है वो उसी को यूज़ कर रहा है। दैट्स द पार्ट आई लाइक अबाउट जेम्स। और बाकी जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने उसको किया है,
क्योंकि मैंने वैसी लाइफ बहुत देखी है अपने आसपास। मैं चौल में भी रहा हूँ, तो आसपास मैंने वैसे कैरेक्टर्स बहुत देखे हैं, तो वहीं से इंस्पायर होके उन लोगों के साथ जिया है, उन लोगों के साथ खेला है, उन लोगों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो बैक ऑफ द माइंड वो रहता है आपके कि वो आदमी कैसे बात करेगा, कैसे चलेगा, क्या उसका बिहेवियर होगा, क्या उसका साइकोलॉजी होगा। तो उन्हीं सब का एक पुलिंदा बना के और कैरेक्टर किया है। हाँ, हम लोग का मतलब सबका जो कैरेक्टर था मोस्टली जैसा आपने बोला वो रियल लोकेशन ही था। तो यार मैं तो मतलब वो वैसे ही हूँ जैसा वो कैरेक्टर है ना, मैं उसके बहुत आसपास हूँ, तो मुझे तो ऐसा तोड़फोड़ करने में बहुत मज़ा आता है। एंड आई थिंक प्रमोद ऑल्सो, आई मीन। तो ये शो के करीब 1 महीने 17 दिन पहले मैं फैज़ाबाद जेल में था। मैं प्रिजनर्स के साथ 17 दिन का वर्कशॉप करके आया था। खैर वो मैं कैसे पहुंचा भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन तो एक ना हम यहाँ पे शहर में बड़ी बिल्डिंग में रहकर देखते हैं और हम जजमेंट पास कर देते हैं, अरे वो रेपिस्ट है, मर्डरर है। तो जब मैं उनके करीब गया और मैं उनकी लाइफ देख कर आया, और जब भी शूट होता था ना, हम धारावी में कभी कर रहे हैं, मेरा कैरेक्टर ही ऐसा उठाई गिराया था कि उसकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है और वो 80% भारत है। हमारे जो लोग हैं, हम पैदा हो गए हैं, हम जी रहे हैं, EMI भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, चल रहा है, बस वो चल रहा है। तो मंगेश भी वैसा ही है कि घर कैसे चल रहा है, माँ ने निकाल दिया, पता नहीं, मतलब नेक्स्ट क्या करना है कुछ नहीं पता। मैकेनिक के पास वो हथौड़े से पाने को ठोक रहा है, उसको यही नहीं पता कि वो काम कैसे करते हैं, नहीं पता उसको, कुछ भी नहीं पता, और ऊपर से बोल नहीं सकता, तो उसको काम नहीं मिलेगा। अब वो क्या करेगा? और उसको जो पहली चॉकलेट मिलती है, जब उसको सिद्धार्थ बोलता है, उसका जो फ्रेंड है सिद्धू, वो बोलता है कि भाई एक तेरे लिए काम है, और वो काम में उसको अच्छे कपड़े मिलते हैं, पहली बार अपनी बहन को एक मोबाइल फ़ोन दे पाता है, मतलब वो एकदम सडनली सांप बन जाता है। उसको ये नहीं पता कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ने वाला है, वो किसको प्रोटेक्ट करने जा रहा है, उसकी लाइफ में क्या स्यापे पहनने वाले, ही हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया। एंड दैट इज़ हाउ वी ऑल आर, राइट? कि वो जब वो व्हेन यू गेट दैट कैंडी, what do you do? And you go to any extent to get this done. So that is Mangesh, and और वो बोल नहीं सकता था। So it's just crazy जिस तरह से ये स्टोरी बिल्ड होती है, जिस तरह से जेम्स की बिल्ड होती है, एंड देन वो लोग सारे कर क्या रहे हैं यार, एंड आई स्टिल डोंट नो कि वो लोग क्या करने वाले हैं। एंड सेकेंड सीजन इज अ मिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू। मैं ऐसे ही रहता हूँ, हर वक्त सूट पहन के ना मैं पक जाता हूँ, मुझे होता है यार, माइंड ब्लोइंग लगा हंकार का प्रोमो। रवि अय्यर जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और मैंने बहुत पहले भी देखा था जब इन्होंने एक रफ बनाया था। आई हैड गूज़बम्प्स लुकिंग एट दैट, एंड अभी मैं बस अंदर जाने वाला हूँ देखने के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब मैं दौड़ के आया हूँ, मेरा मीटिंग थी, मैंने कहा नहीं यार मुझे जाना है, आई हैव टू वॉच दिस सीरीज। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। कंटेंट देखा जाए, प्रोमो देखा जाए, उसमें जैसे नेचुरल बेस्ड, सोशल बेस्ड कहानियाँ हैं, कितना रिलेट कर पाती है आप जब इस तरह की इंसिडेंट्स देखते हैं कहीं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यार बहुत मुझे एक्चुअली वही चीज़ अपील करी थी, बिकॉज क्या होता है ना, हर चीज़ बहुत ग्लॉसी होती है हर वक्त, मेजरली दैट इज़ व्हाट सिनेमा इज़। बट आई थिंक इस तरह का कंटेंट जो है अब तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चलन हो गया उसका, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसे। और इसके अंदर मुझे खास तौर पे जो अच्छा लगा था, एक्टर्स बड़े कमाल है, जो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा ये एक्टर्स ही हैं या आपने एक्चुअल लोग उठाए? कहते नहीं यार ये एक्टर्स हैं। सो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ लगी थी, जितना रियल लुक है इसका, सो बहुत अमेजिंग है। जी हाँ यार, इनफैक्ट मैंने भी खुद एक शॉर्ट फिल्म करी है, मैं उसकी अभी बात नहीं करूँगा बिकॉज ये हंकार का दिन है। सो आई थिंक ये कम्प्लीटली उन्हीं का रहना चाहिए। बट हाँ, वो एसेंस जो होता है रियल लोकेशन का, वो माइंड ब्लोइंग होता है। गुरिल्ला शूट्स होते हैं, एक्चुअल जगह होती है जहाँ पे शूट करते हैं, तो आई थिंक वो फील बहुत अमेजिंग होता है उसका। जी
व्हाई नॉट यार, मैं एक एक्टर के लिए कोई मीडियम मायने नहीं रखता, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो बड़ा पर्दा हो, चाहे वो टेलीविज़न हो। आई थिंक हम लोग काम के भूखे होते हैं, एक अच्छा काम आए। और वेब सीरीज़ आजकल वैसे भी बहुत चल रही हैं और बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि चल रही है, चलता बहुत कुछ है जिसमें कंटेंट नहीं भी होता, कई बार वो भी चलता है, लेकिन जो मायने रखता है वो है कंटेंट। आई थिंक एक अच्छा कंटेंट आए तो लोग बड़े खुश होते हैं। यार मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक जो कंटेंट होता है वो किंग होता है, तो उसके अंदर अगर एक गाली आ गई या कुछ ऐसी चीज़ आ गई, एट द एंड अगर वो एक स्टोरी में फिट इन हो रहा है सो वो मैटर करता है। आई थिंक कोई भी वेब सीरीज़ पे सिर्फ ऐसी चीज़ डालने के लिए वेब सीरीज़ नहीं बना रहा। आई थिंक वो कंटेंट में अगर एक गैंगस्टर दिखाया है तो अगर उसकी भाषा थोड़ी वैसी दिखाई गई है, सो आई थिंक इट डजंट मैटर। यार मैं यही कहना चाहता हूँ, बॉस अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करो। गो एंड वॉच आउट हंकार, देखो मेरे दोस्तों ने बनाई है, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, गो एंड सपोर्ट एंड शेयर।